الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہمارے دین اسلام کے ایک اہم ترین حکم کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں جو ہے بہت سارے لوگ آئدر جانتے نہیں ہیں یا پھر جانتے تو ہیں بٹ اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، یا پھر امپورٹنٹ تو جانتے ہیں لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے، مثال کے طور پر یہ جو حکم جس وقت میں کرنا ہے اس وقت میں بزی ہونے کی وجہ سے اس حکم کو پورا نہیں کر پاتے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے دین کا جو حکم ہے صبح شام کے اذکار کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ صبح شام کے اذکار کیوں پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کیوں ضروری ہے، دین میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، قرآن اور حدیث ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ سب ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے میری بہنوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جی ہاں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں مینی پلیسز ان دا قرآن، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اوقات میں صبح اور شام میں اپنے ذکر کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں سورہ احزاب کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام مجھے یاد کرو، میری تسبیح کرو۔ اس طرح کا حکم ہمیں کئی جگہوں پر قرآن میں ملتا ہے۔ تو قرآن میں حکم تو مل گیا کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن ان اوقات میں کیا پڑھنا ہے، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یاد رکھیے کہ یہ سنت رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے تھے، ہم کو ساری دعائیں سکھائی، صبح کیا پڑھنا، شام میں کیا پڑھنا، اور اس حکم پر، اس جو ہمارے دین کے اس عمل ہے اس پر اور زیادہ سٹریس دلایا، اس کی امپورٹنس پر اور زیادہ روشنی ڈالی اس حدیث کے ذریعے سے۔ حدیث غور سے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ معنی کیا ہے؟ صبح میں فجر اور سن رائز تک، اور شام میں عصر سے لے کر سن سیٹ تک جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اتنا پسند ہے، مور دین 4 غلام آزاد کرنا، اس سے زیادہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتاتے ہیں۔ اس حدیث کی تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے ہم آگے پہنچیں گے۔ جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے دین میں جو ہے غلاموں کی آزادی از کنسیڈرڈ ایز اے ویری گڈ ڈیڈ۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے ہمارے دین نے غلاموں کو آزاد کرنے پر ابھارا ہے۔ کئی گناہوں کا کفارہ بھی جو ہے غلاموں کی آزادی رکھا ہے ہمارے دین میں۔ اور دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ غلام جو ہے خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور مالک کیا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ جس طرح کا چاہتے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے غلاموں کی آزادی کے لیے ہمارے دین نے ابھارا ہے کہ غلام خرید کر آزاد کرو۔ اور جس جگہ کا غلام ہوا کرتا تھا نا، اس کی ویلیو اس حساب سے ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ رومی کی لونڈیاں جو ہیں they were very expensive۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم is talking about 4 عرب غلامس۔ تو یہاں پر عرب غلامس مینشن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گہری بات کی ہے، کیونکہ عربs were very expensive slaves۔
Why they were expensive? Because they were from the elite class, बहुत ज़्यादा honored थे, respected थे, एक high class के थे उनके गुलाम। मतलब अरब एक अरब अगर तुम्हारा गुलाम है तो इट मीन्स कि ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और अगर एक अरब गुलाम को अगर खरीदना होता तो यू हैड टू स्पेंड अ लॉट। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही कि एक नहीं, दो नहीं, 4 अरब गुलाम को तुम्हें खरीद को आज़ाद करना भी मुझे उतना नहीं पसंद जितना मुझे इन लोगों के साथ बैठना पसंद है। किन लोगों के साथ? जो सुबह हमें और शाम में जो हमने वक्त इस हदीस में पढ़ा उसमें अल्लाह का जिक्र करते हों। देखिए कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अरब गुलाम्स देखिए, स्पेशली अरब गुलाम्स का तो क्या, बनी इस्माइल के जो इसमें रहती हैं उनके बनी इस्माइल में से जो पीपल हैं उनको अरब्स बोलते हैं, राइट। तो बनी इस्माइल में जो अरब स्लेव्स थे, they were very expensive. And why were they expensive? Because of their loyalty, their strength, their intelligence. Okay, तो याद रखिए कि रिमेंबर फ्रीइंग एन एक्सपेंसिव स्लेव्स मीन्स गिविंग अ बिग हैवी सदका। अब फॉर एग्जांपल हमारे ज़माने में तो स्लेव्स वगैरह नहीं है। इट इट मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, एक 4 मर्सिडीज कारा खरीद को उसको सदका कर डालना। वो ज़माने में अरब स्लेव्स वे वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इस यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए 4 अरब, सिर्फ गुलाम नहीं बताया, अरब गुलाम आज़ाद करने से भी ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के साथ बैठना पसंद है जो इन औकात में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट बन जाएंगे अगर हम इस हुक्म की पैरवी करेंगे। फिर याद रखिए कि अल्लाह ताला का हो कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं। हर हुक्म में इंसान के लिए भलाई का समंदर भरा हुआ है। एंड वन ऑफ द मैनी बेनिफिट्स ऑफ सुबह शाम के अस्कार इस के इंसान जो है हर तरह के शर से बच जाता है। हर तरह के शर, हर तरह की आफत, मुसीबत, परेशानी, हर तरह के हादसातों से कंप्लीट प्रोटेक्शन हासिल करता है। किस तरह? इन अस्कार को पढ़ने से। कई लोगों की ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी के वाक़यात हमारी आँखों के सामने हैं कि किस तरह लोग हादसात का शिकार हुए हैं। और जो है मिसाल के तौर पर कोई सेहत से परेशान है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई माल की तंगी से दुखी है, तो कोई औलाद की वजह से परेशान है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी की जॉब चली गई, किसी का घर जल गया, किसी को जो है शैतान का खौफ है, किसी को लोगों का खौफ है, कोई जादू से परेशान, कोई नज़र से परेशान। तो इन तमाम दुखों और परेशानियों का एक सल्यूशन, एक द बिगेस्ट एंड इफेक्टिव सल्यूशन के इस प्रोटेक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं? अल्लाह ताला के ज़िक्र से। कब कब करना है ज़िक्र? हर वक़्त करना है, स्पेशली सुबह और शाम। तो वो तो सुबह शाम के अस्कार मेरी बहनों एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हार्म, क्योंकि आवर लाइव्स आर फुल ऑफ डिस्ट्रेस, कैलामिटीज एंड हार्डशिप्स, राइट। तो इनसे बचने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन, एक बहुत बड़ी शील्ड है ये सुबह शाम के अस्कार। इसकी क्या दलील है? अब आप देखिए, जब आप दुआएं पढ़ते जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक एक दुआ जो है दुआओं में जो है देयर मेनी दुआस जो पर्टिकुलर चीज से प्रोटेक्शन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं। और एक बात याद रखिए कि दिस जो है अगर जो भी मुश्किल परेशानी इंसान पर आती है ना, तो मुसलमानों पर जो भी बुराई मुसीबतें आती है, आइदर इट कैन बी अ
टेस्ट और इट कैन बी अ पनिशमेंट, आइदर इट कैन बी अ आजमाइश या अजाब, और इन दोनों से बचने का सल्यूशन सुबह शाम के अस्कार में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइशों से भी पनाह चाहते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब से भी पनाह चाहते थे। तो इन दुआओं में इन दोनों का सल्यूशन हमें मिलेगा। और मेरी बहनों, ये सुबह शाम के अस्कार एक आर्मर है, एक शील्ड है। जिस तरह इंसान नुकसान से बचने के लिए दुश्मन से जिस दुश्मन के वार से बचने के लिए फॉर एग्जांपल जंगों में आर्मर या शील्ड पहन लेता है, राइट। अब कौमें क्या करते थे, दुश्मनों से बचने के लिए फोर्ट्स बनाया करते थे, द वॉल ऑफ प्रोटेक्शन बना लिया करते थे, राइट। तो इसी तरह सुबह शाम के अस्कार are a shield which we construct every morning and every evening. Why do we need this shield every day? क्योंकि याद रखिए मेरी बहनों, every day is a challenge. कई मुश्किलात फेस करनी पड़ती है हमें when we get up. There are new struggles, there are new challenges, new opportunities, new disappointments. नए लोगों से वास्ता, ये सब फेस करने के लिए वो इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे अंदर। एक इनर स्ट्रेंथ, ये इनर स्ट्रेंथ कहाँ से हासिल होगा? एक शील्ड एंड आर्मर ऑफ प्रोटेक्शन जो हमें प्रोटेक्ट करेगा हर तरह के हार्म से, दिस इज सुबह शाम के अस्कार से हमें हासिल होगा। और याद रखिए मेरी बहनों, जैसे एवरी डे इज अ चैलेंज, एवरी डे इज अ गिफ्ट। सुबह जब हम उठते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा, या अल्लाह शुक्र है, अल्लाह तेरा ही शुक्र है कि हमने सुबह की दोबारा जो है मौत के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी गई अल्लाह तेरी तरफ से। या अल्लाह एक और दिन तोहफे के रूप में मिल गया। क्यों मिला है ये दिन? ताकि हमारी, ये दिन क्यों मिला हमें एज अ गिफ्ट? हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, आखिरत की तैयारी कर सकें, राइट। तो क्या ये प्रेशियस दिन हम दुखों में और परेशानियों में गुजार देंगे? सैडनेस, डिप्रेशन, लेजीनेस, अनप्रोडक्टिव गुजार देंगे हम इस प्रेशियस दिन को? तो क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, हर तरह के हार्म से। और प्रोटेक्शन कैसे हासिल होगी? इन अस्कार की पाबंदी से हासिल होगी। तो इन अस्कार को कंसिस्टेंटली पाबंदी के साथ अदा करना है। और एक बात याद रखिए मेरी बहनों, कि प्लेट सजा दी गई है। अब हमको जो है बता दिया कि सुबह शाम अस्कार पढ़ लो, जिक्र कर लो। क्या पढ़ना, जस्ट गो एंड फिगर इट आउट कि क्या पढ़ना है एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ऐसा नहीं बता दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर चीज़ सिखाई। सुबह क्या पढ़ना, शाम में क्या पढ़ना, कितनी दफ़ा पढ़ना, किस दुआ से क्या फ़ायदा होगा, ये सब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया। एक प्लेट सजा के दे दी कि ये ले लो, यू विल बी प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एज एज प्रोसीड्स हम ना क्या करता है, डॉक्टर जो है, डॉक्टर रिकमेंड्स सम vitamins, कैल्शियम टैबलेट्स, राइट, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम फ्यूचर हार्म, लाइक द वेयरिंग ऑफ बोन्स और एक्सेट्रा। अब हज पर भी जाने के टेम्पो क्या करती हैं हम, वी टेक इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस। और फिर बच्चों को भी देखिए, पहले से क्या डालती हैं हमें, हर तरह के वैक्सीनेशन हमें देती हैं, राइट, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीजेस और समथिंग। तो मेरी बहनों, these askar are our daily dose that we have to take twice daily. Every 12 hours you are taking this dose and this is for your life. And ये जब तक हम नहीं मरते तब तक we should not stop. जब तक हमारा आखिरी दम है तब तक वी नीड दिस प्रोटेक्शन, वी नीड दिस डेली डोज एवरी डे, एवरी 12 आवर्स। और वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस। याद रखिए मेरी बहनों, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ प्रिवेंशन। यस, ट्रीटमेंट इज ऑल्सो देयर, लेकिन ट्रीटमेंट कम्स लेटर मेरी बहनों। तखवा, जिसके बारे में अल्लाह ताला बार 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 कुरान में बताते हैं, व्हाट इज तखवा? तखवा इज प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ बिफोर एनी हार्म। तो मेरी बहनों, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू।
हर हुक्म अल्लाह ताला का इज़ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थिंग्स दैट विल हार्म अस मेरी बहनों। तो ये हुक्म से हम क्या कर सकते हैं, how we can protect ourselves, because इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ प्रिवेंशन। अब देखिए, जैसा मेडिसिन के बारे में हम बात करें, एंटी बीमार पड़ने के बाद वी टेक एंटीबायोटिक्स, राइट? ये क्या है, इट्स लाइक टेकिंग दी टैबलेट्स ऑफ vitamins एंड कैल्शियम एंड प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ बिफोर एनी हार्म। तो अल्लाह ताला ने जो है ये आर्मर, ये शील्ड दे दी और कहा ये शील्ड पहन लो, यू विल बी प्रोटेक्टेड। और हम क्या कर रहे हैं, आर वी वेयरिंग दिस आर्मर? तो अगर हमें ये आर्मर नहीं पहने और हमें कुछ हार्म पहुंचा भी, तो किसकी फॉल्ट है मेरी बहनों? देखिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सो मेनी कैलामिटीज। तो मेरी बहनों, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ प्रिवेंशन, जैसे मैंने कहा। तो ज़रूरत क्या है, फर्स्टली वी नीड टू टाई आवर कैमल एंड देन ट्रस्ट अल्लाह। हमें इस प्रोटेक्शन को लेना है एंड देन वी हैव टू आस्क अल्लाह ताला फॉर प्रोटेक्शन। सुस्त लोग जो कुछ नहीं करते, दे कांट एक्सपेक्ट एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानो व ताला। तुम पहले अपना स्टेप तो लो, तुम अपने पहले कैमल तो टाई करो, उसके बाद अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन हासिल करने, प्रोटेक्शन की उम्मीद रखो। और मेरी बहनों, याद रखिए कि इन अस्कार को पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। अल्लाह के बारे में जो जैसा गुमान करता है उसी तरह पाता है। जितना ज़्यादा यकीन उतना ज़्यादा असर होगा इन दुआओं में। हमारा बिलीव होना होना चाहिए कि मैंने आज इन अस्कार को पढ़ लिया, अल्लाह ताला विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हार्म। इफ़ यू डोंट बिलीव, ये दुआज असर नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा यकीन उतना ज़्यादा असर। अब दुआएं भी पढ़ ली अस्कार के, फिर डर रहे हैं कि अयो मुझे क्या हो जाता है, कि मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचा दिया डालती, उन्होंने मुझ पर जादू कर डालती, उन्होंने मुझे नजर। नो, यू हैव वोन योर आर्मर। अब आराम से रहो, बी एट पीस, क्योंकि आपने अपनी आर्मर पहन ली ना। तवक्कुल अल्लाह और यकीन इन दुआओं पर कि अल्लाह ताला विल प्रोटेक्ट मी। तो ए मेरी बहनों, फॉर एन एक्टिव और मुफीद पर्पसफुल लाइफ हमें क्या करना चाहिए, हमें इन अस्कार की पाबंदी करना चाहिए। हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए इन अस्कार को मजबूती के साथ थामे रहना चाहिए। और याद रखिए मेरी बहनों, आप व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दिस अस्कार, जब हम इसको आप कंसिस्टेंटली पढ़ते जाएंगे, यू विल फील अ बिग चेंज। जो दिन इस दुआओं के साथ शुरू हुआ और जो दिन इस दुआओं के बगैर शुरू हुआ, यू विल ऑब्जर्व अ ह्यूज डिफरेंस। बड़ा चेंज महसूस करेंगे आप वो 2 दिनों में भी, और अपने अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। यू विल स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स मेरी बहनों, लाइक यू विल मिराक्युलसली सी योरसेल्फ बीइंग सेव्ड। एक छोटी छोटी इसमें ऐसा लगेगा कि ओ मैं तो अभी गई थी, अल्लाह ताला ने बचा लिया। देयर सो मेनी थिंग्स, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मिरेकल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मेरी बहनों, यू अल्लाह ताला गारंटीज यू हिज प्रोटेक्शन। You will find a huge difference in your life and you will realize कि अब तक जब मैं आस्कार नहीं पढ़ रही थी, तो what were the devils doing with your life, किस तरह परेशानियों और मुसीबतों में डाले रखे थे। और याद रखिए मेरी बहनों, अल्लाह ताला जो है नहीं चाहते कि हम परेशान हों। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम प्रोटेक्शन में रहें, हम सुकून के साथ रहें। A person who adheres and remains steadfast to these askar will find a lot of blessings and life changing experiences in his life, inshallah ताला। और मेरी बहनों, इन दुआओं को पढ़ने से व्हाट आर वी अकम्प्लिशिंग, दे आर 3 थिंग्स। याद रखिए, इन अस्कार को पढ़ने से सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला की फर्माबरदारी कर रहे हैं, इससे अल्लाह ताला खुश होंगे, अल्लाह ताला राजी होंगे। सेकंड, सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, सुन्नत फॉलो करने का अजर मिलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट बन जाएंगे।
थर्ड, हर तरह के शर से, हर तरह के हार्म से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और एक बात याद रखने की ये है मेरी बहनों कि आवर सुन्ना इंडिकेट्स के deeds, our deeds are presented to Allah at these times। मेरी बहनों, हमारे डीड्स जो हैं, हम जो नेकियां करते हैं, वो जो है इट इज प्रेजेंट टू अल्लाह तीन औकात में इट इज प्रेजेंटेड। सबसे पहले डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और एक बार वीकली, दैट इज मंडे एंड थर्सडे, एंड ईयरली वंस इन दी मंथ ऑफ शाबान। तो यहाँ पर मेरी बहनों, एट दीज टाइम्स, कोसा फजर के बाद और असर के बाद, the angels change their shift, your reports are being taken to Allah subhanahu wa ta'ala at this time। So don't you want that our angels when they go up, दे हमारा लास्ट अमल अल्लाह ताला का जिक्र हो, अल्लाह ताला की तस्बीह हो, अल्लाह ताला का हम्द हो, और जो एंजल्स नीचे उतर रहे हैं, हमारा फर्स्ट अमल उनके रिकॉर्ड्स में तस्बीह हो, हम्द हो, अल्लाह ताला का जिक्र हो। डोंट वी वांट दिस टू बी इन आवर रिकॉर्ड्स कि हमारा रिपोर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इज तस्बीह, एट द एंड ऑफ द डे इज तस्बीह, राइट? तो मेरी बहनों, एंजल्स शिफ्ट एट दिस टाइम, दे आर टेकिंग देयर रिकॉर्ड्स। जो सुबह में, जो रात भर हमारे पास रहे, दे गो बैक टू अल्लाह सुबहान ताला एट दिस टाइम। एंड एक हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, अल्लाह जो है अपने एंजल से पूछता है कि हाउ डिड यू लीव माई स्लेव्स, एंड फिर जो अ, सुबह मतलब सुबह से शाम तक जो रहे थे एंजल्स, जो शाम में रिटर्न होते हैं अल्लाह ताला के पास, तभी अल्लाह ताला पूछते हैं इन एंजल्स को कि हाउ डिड यू फाइंड माई स्लेव। तो वो कहते हैं we left them when they were praying and we came back when they were praying। तो इन औकात में जो है अल्लाह ताला का जिक्र करना, नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, इन अस्कार के ज़रिए, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इब्न हजर कहते हैं कि दिस इंडिकेट्स दैट डीड्स आर टेकन अप एट द टाइम ऑफ द डे, whoever is in the state of obedience at that time will be blessed in his provision, his work, and जो है in all his things। तो मेरी बहनों, इन औकात में फजर और असर के वक्त में अल्लाह ताला का जिक्र करना है, अल्लाह ताला को याद करना है। देखिए, द प्रेजेंटेशन ऑफ आर डीड्स हैपन 3 टाइम्स, जैसे मैं बताई, एट द टाइम ऑफ फजर एंड असर, ऑन मंडेज एंड थर्सडेज, एंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ शाबान, डेली, वीकली एंड एनुअली। लास्टली, मैं कुछ फेमस स्कॉलर्स के एडवाइजेस आपके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करूंगी। इब्न अल क़य्यिम कहते हैं, सुबह शाम के अस्कार ढाल का किरदार अदा करते हैं। जितना थिक और मजबूत ये ढाल होगा, उसका मालिक कोई भी हार्म से मुतासिर नहीं होगा, बल्कि उसकी ताकत इस हद तक पहुंच सकती है, यानी कि इन अस्कार की, कि उस पर लगने वाला तीर वापस उछालने वाले को मुतासिर करेगा। इससे लेसन हमें ये मिलता है कि कोई भी इसका थिक होना, मतलब ढाल का थिक होना, मतलब व्हेन यू रीड ऑल द अस्कार, जितने कितने अस्कार हैं, ऑलमोस्ट 25 to 26 अस्कार जो सुबह शाम के हैं, ऑल ऑफ देम पढ़ना, जितने ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा थिक होगा, और जितना कम आप अस्कार पढ़ेंगे उतना वीक करिए शील्ड होगा। फिर शेख उथैमीन का कौल है, उन्होंने फरमाया, सुबह शाम के अस्कार दीवार याजूज माजूज से भी ज्यादा मजबूत किला है, लेकिन इसके लिए जो उसके लिए जो कहता है और उसका दिल मौजूद हो। इससे लेसन हमें ये मिलता है, दिल मौजूद होना मतलब समझ कर पढ़ना। योर हार्ट शुड बी प्रेजेंट। याजूज माजूज फोर्ट वॉज मेड अप ऑफ स्टील, आयरन एंड मेटल्स, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत ये हमारे जो अस्कार हैं उसकी वजह से हमें मिल सकता है, बोलते हैं शेख उथेमीन। नेक्स्ट इब्न सलाह कहते हैं कि जो शख्स सुबह और शाम के अस्कार, नमाज के बाद के अस्कार और सोने से पहले के अस्कार को अदा करेगा, तो वो अल्लाह को कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे।
اس لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم صبح، ان کا کہنا یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھنے سے ہم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات آتا ہے نا سورہ احزاب آیت نمبر 35، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور یہ کئی لوگوں کا ذکر آتا ہے اس میں، اس آیت میں، آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کیریکٹرسٹکس ہیں جس میں بھی، ان کو جو ہے اللہ ریوارڈ سچ پیپل بائی سیئنگ کہ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ان کیریکٹر والوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اگر ہم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ ابن کثیر جو ہے کہتے ہیں کہ اذکار کی چادر پہن لو تاکہ یہ تمہیں انسانوں اور جنوں کے شر سے مضبوط رکھے، اور اپنے نفسوں کو استغفار سے ڈھانپ لو تاکہ یہ رات اور دن کے گناہوں کو مٹا دے۔ پھر لاسٹ میں امام النووی کہتے ہیں اگر کسی کو صبح شام کے تمام اذکار پر عمل کرنے کی توفیق اور رہنمائی عطا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا، یعنی کہ اٹ از اے بگ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو صبح شام کے اذکار کی توفیق ہو گئی ہے تو اٹ از اے بگ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے مبارک ہو، کنگریچولیشنز ٹو ہم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان سب پر عمل کرنے سے عاجز ہو، مطلب if he is not able to read all the duas، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اختصار تک محدود رکھے۔ معنی یہ ہے کہ کچھ تو پڑھ لے، ایٹ لیسٹ لیٹ him read some، خواہ صرف ایک ذکر ہو، ایک ذکر ہی کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کیا بھی نہیں پڑھ سکا تو ایٹ لیسٹ ایک تو پڑھنا ہی پڑھ لینا چاہیے۔ Of course the reward for the one who reads more will be definitely زیادہ، جو زیادہ پڑھے گا اس کے ریوارڈ زیادہ ہوں گے۔ تو انہوں کیا بولتے ہیں کہ کچھ نہیں پڑھنے سے ایٹ لیسٹ جو بیسک منیمم ہی وہ تبھی پڑھ لیا، اور بیسک منیمم کیا ہے انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار